So in the last class, we have seen this one that if a schedule is conflict serializable, then there can be the two cases. One is yes, if it is a conflict serializable schedule, it is also view serializable schedule, and if it is a view serializable schedule, we can say that is serializable schedule. Okay. Another thing, if it is a conflict serializable schedule, not a conflict serializable schedule. If it is not a conflict serializable schedule, we'll check two cases. One is we'll check that there is a blind write or not. If there is a blind write, we'll have to further check a view serializability. Okay, and if there is a no blind write, if there is a no blind write, we'll not check for a view serializability. Directly we will say that this schedule is not a view serializable. If it is not a view serializable, it is also not a serializable. Okay, so let's take an example and understand. So here this is what a schedule given. Is T1, T2, T3, T1, T2, T3. This is what a schedule given, and your operation read of A. Next operation it is write of A. Then it is write of A, and here it is a write of A. Yeah, this is what a schedule given, and it is asking about a serializable or not. This schedule is serializable schedule or not. तो क्या करना पड़ेगा सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए? फर्स्टली आई विल चेक फॉर द conflict serializability. If this schedule is conflict serializable schedule, then it is definitely serializable also. Okay, so I will check for the conflict serializability. So you check for the conflict serializability. This schedule is a conflict serializable schedule or not? Yes, firstly you check that this schedule is conflict serializable schedule or not. Yes, this schedule is conflict serializable schedule or not?
To check the conflict serializability, it will take just 10 seconds. Let me continue. Yeah, firstly tell me, am I audible? कहीं सुनाई नहीं दे रहा हो. Audible है. Okay. So for conflict serializability, what we'll see, I will make the precedence graph here. So here three transactions are there. So we can say T1, T2, and T3. Okay, it is conflict serializable schedule. Okay, we'll check. So conflict serializability के लिए क्या करना पड़ेगा? We'll have to make the precedence graph. So पहली बात तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, चलो उसके बाद वो बताएंगे 10 सेकंड में कैसे पता चलेगा. यस, it is a read of A and here it is a write of A. This is what a conflict pair. Why? Because data items same, at least one write operation, transactions are different, so it is a conflict pair. Is conflict pair from T1 to T2, so it is from T1 to T2. After that, is there any another? Yes, it is a read of A, write of A. This is also a conflict pair. So this is from T1 to T3. So it is a T1 to T3. What about next one? This is a write of A. This is also write of A. So here also a conflict pair from T2 to T1. It is T2 to T1. If it is a conflict pair from T2 to T1, we can stop here because there is a cycle, right? If there is a cycle in the precedence graph, then we can say it will not be conflict serializable schedule. Okay, वैसे मैं complete कर देता हूँ इसको. So एक ये हो गया, फिर क्या होगा? Right of A and this one, there is a conflict pair. So this conflict pair is T1 to T3. So T1 to T3 already taken. So finally what I can conclude, we can conclude that this T1 and T2, here it is a loop, or we can say there is a cycle. Due to this cycle, this is not a conflict serializable schedule. So we can say it is not conflict serializable schedule. किसी का conflict serializable आ गया था, कैसे आ गया? It is not. Yes, it is not a conflict serializable schedule. और मैंने क्या कहा था, 10 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन देखते ही. तो डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है ना, T1 से T2 क्या है? एक conflict पेयर है, और T2 से T1 क्या है? conflict पेयर है. डेफिनेटली साइकिल बनेगी. पता चल गया. और यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि conflict, it is not a conflict serializable schedule. ठीक है. So it is clear to all, it is not a conflict serializable schedule. Okay, so next thing, if it is not a conflict serializable schedule, then next thing we'll go to this part. It is not a conflict serializable schedule, then we'll go to this part. Here there is two options. So here it is two options. There is a blind write or not a blind write. So I will check for the blind write. Tell me, there is a blind write or not? In this diagram, there is a blind write or not? बताया था ना मैंने कल कि ब्लाइंड राइट कैसे पता करते हैं. हाँ, ब्लाइंड राइट का मतलब क्या है? एक ऐसा राइट जिसको ब्लाइंडली कर दिया गया है, मतलब कि जिसको रीड किए बिना ही राइट कर दिया गया है. इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो राइट है, ये क्या है? दिस इज ए ब्लाइंड राइट, बिकॉज इससे पहले इसको रीड नहीं किया गया, राइट? इसको रीड किए बिना क्या कर दिया? राइट कर दिया. अगर राइट कर दिया तो क्या हो गया? ये ब्लाइंड राइट हो गया. ओके, इफ देर इज ए ब्लाइंड राइट तो क्या करना पड़ेगा? फर्दर विल हैव टू चेक दैट इट इज ए व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉट. तो अब क्या करना पड़ेगा? फर्दर चेक करनी पड़ेगी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है. सो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है? वी कैन चेक द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी
with the help of that we can say polygraph की help से की जा सकती है. How to make the polygraph I will tell you. So here these are the three transactions, T1, T2 and T3. Okay, so first thing that here it is what T1 is doing the initial read. हाँ, T1 is doing the initial read. हमने देखा था ना, तीन कंडीशन हम चेक करते हैं. तीन कंडीशन क्या थी कि I will check for the initial read and I will check for the final write and I will check for the write read sequence. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल रीड चेक करेंगे, फाइनल राइट चेक करेंगे और राइट रीड सीक्वेंस चेक करेंगे. या तो वो वाला मेथड यूज कर लो या इस तरीके से चेक कर सकते हैं. तो यहां से पता चल रहा है ना कि इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1 कर रहा है. इसका मतलब ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई सीरियल शेड्यूल आएगा तो उसमें T1 क्या होना चाहिए, T1 पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए, है ना. T1 क्या करना चाहिए, उस सीरियल शेड्यूल में T1 पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए. जैसे कि ऐसे रीड ऑफ ए एंड उसके बाद राइट ऑफ ए एंड आफ्टर दैट राइट ऑफ ए एंड ऑल. ओके, तो ये वाला पहले करना चाहिए क्योंकि इनिशियल रीड है और इस रीड को कोई भी अपडेट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे इस रीड को कोई अपडेट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर मैं T2 को पहले एग्जीक्यूट करा देता सीरियल शेड्यूल में तो क्या होता, T2 को पहले करा देते तो ये राइट क्या कर रहा था, अपडेट कर देता ना रीड को. तो ये वाला केस नहीं ले सकते थे. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात तो श्योर है कि T1 क्या होगा, T1 एग्जीक्यूट होगा किससे, T2 से पहले और T3 से पहले. तो T1 क्या होगा, T2 से पहले एग्जीक्यूट होगा एंड T3 से भी पहले एग्जीक्यूट होगा. किसमें, इसके इक्वल जो सीरियल शेड्यूल होगा उसमें. ओके, ठीक है. What is the next story? Next story by observing this one. यहाँ पे एक ही डेटा आइटम दे रखा है और उस डेटा आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट कौन कर रहा है, यहाँ पे उस डेटा आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट कौन कर रहा है, ये T3 कर रहा है. अगर फाइनल राइट T3 कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल राइट कौन करेगा, T3. इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए, T3. तो क्या कह सकते हैं कि लास्ट में कौन होगा, T3. इसका मतलब T2 से पहले कौन होगा, T3. एंड व्हाट इज द राइट रीड सीक्वेंस, इज देयर एनी राइट रीड सीक्वेंस, कोई राइट रीड बन नहीं रही है यहाँ पे. अगर राइट रीड सीक्वेंस कोई नहीं बन रही है, नो प्रॉब्लम. तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे यहाँ से, बाय ऑब्जर्विंग दिस वन वी कैन से कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, उसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फाइनली कौन कर रहा था फाइनल राइट, T3. तो T3 क्या होगा, लास्ट में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो ये क्या है, इसका इक्वल सीरियल शेड्यूल होगा एंड दिस इज व्हाट ए व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. और ये शेड्यूल क्या होगा, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा, राइट. तो ये शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा और इसके इक्विवेलेंट जो व्यू सीरियल शेड्यूल होगा वो क्या होगा, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 देन T3. ये वाला इस ऑर्डर में क्या मिलेगा, इसके इक्विवेलेंट व्यू सीरियल शेड्यूल मिलेगा. यस यस, ब्लाइंड राइट इज राइट ऑफ ए. ये वाला राइट जो, ये ब्लाइंड राइट है. ब्लाइंड राइट का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले कोई रीड नहीं हो रहा है ना, इसको ब्लाइंडली राइट किया गया है. ठीक है, ओके. और इसको भी ब्लाइंडली राइट किया गया है. यहाँ पे ये भी ब्लाइंड राइट है, दिस इज ऑल्सो ए ब्लाइंड राइट क्योंकि इससे पहले भी रीड नहीं कर रखा ना. दिस इज ऑल्सो ब्लाइंड राइट, ये भी ब्लाइंड राइट है. यस, सो इज इट क्लियर टू ऑल. तो चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने सोल्व किया था ना. स्टार्टिंग में जैसे मैंने वो एक टेबल बना के दिखाया था और उसमें व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे निकालेंगे,
वो वाला किया था, है ना। तो फाइनल राइट उसमें चेक किए थे, इनिशियल रीड चेक किए थे, और राइट रीड सीक्वेंस चेक की थी, और वो क्या आ रही थी, दोनों की इक्वल आ रही थी, तो बोल दिया था कि ये क्या होगा, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। राइट रीड सीक्वेंस तो इसमें कोई बनेगी ही नहीं। कौन से वाले में? अच्छा ये वाला, मे भी कोई ऑपरेशन कर किया होगा इसने राइट का, बट इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, रोल क्यों नजर नहीं आ रहा है, रीड करेगा उसके बाद इसने राइट भी तो किया है ना इस ट्रांजेक्शन T1 के लिए, राइट भी तो कर दिया उसने, अपडेट भी तो किया है। ठीक है ना, पहले T1 ने क्या किया था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन T1 में रीड हुआ था, उसके बाद यहाँ जाके इसने क्या किया, उसको अपडेट किया है। क्लियर? Okay, let's take one more example for this view serializability. हाँ, मे भी ऐसा कोई एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Let's see one more example. T1, then T2, and here it is read of A, write of A, read of A, write of A, then it is write of A, read of A, write of A, read of A, write of A, then read of B, write of B, read of B, write of B, then read of B, write of B, read of B, write of B. Clear? This is what a schedule given, and you check that this schedule is this schedule is view serializable or not. Check it is a view serializable schedule or not. तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए क्या करना है आपको, पहले कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि वो आसान है। अगर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा तो वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक कर लेंगे, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो डायरेक्टली बोल देंगे कि ये व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी है, फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ चेक फॉर दिस वन। ओके,
Yeah, what about the others? Is this conflict serializable schedule? Ekta saying no. Okay, let me see. Here these are two transactions, T1 and T2. I will check for the conflict serializability. So firstly I will make the precedence graph. So here read of A, here also read of A, not a conflict pair. What about this one? Yes, this is a conflict pair. So it is T1 to T2. T1 to T2. What about next one? No A. Yes. What about here? It is write of A, read of A. This is what a conflict pair. So it is T1 to T2. Again, this is what a conflict pair, T1 to T2. Okay, let's see next one. Next one further, it is not a. Yes, what about this one? Read of B, read B. It is not a conflict pair. What about this one? Read and write. Yes, this is a conflict pair. So it is also T1 to T2. What about this one? Write of B, write of B. So here write of B, read of B. This is a conflict pair, T1 to T2 again. Write of B, write B. It is also a conflict pair, but it is also T1 to T2. So finally, it is what a precedence graph. And according to this precedence graph, there is a no cycle. No cycle means the schedule is conflict serializable schedule, right? So in the precedence graph there is a no cycle. If no cycle, it is a conflict serializable schedule, right? So this schedule is conflict serializable schedule. Okay, so finally this schedule is conflict serializable schedule. If it is a conflict serializable schedule, we can say it is a view serializable schedule also. So this is what a view serializable schedule also. If it is a view serializable schedule, then we can say it is also serializable schedule, right? This is the story. So is it clear to all? Yes, is it clear to all? एक दो कैंडिडेट ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी को समझ नहीं आ रहा है क्या? Okay, let's see the next example for this view serializability. It is read 1A, write to A, read 1A, write to A, read 3A, read 3A, write 1A, write 1A, write 3A. This is what a schedule given, and check that this schedule is view serializable schedule or not. Check that it is a view serializable schedule or not.
ओके, फर्स्ट थिंग पता चला कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। ओके, सो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो फर्दर चेक करेंगे। या मुकेश वांट टू ज्वाइन? ओके, yeah, further check for view serializability. It is view serializable also or not? And what will be the order for the view serializable schedule? Order for the equivalent serial view equal serial schedule. Okay, let me solve this one. So for better visualization, let me write down this one in the, okay, in this manner. So here these are the three transactions T1, T2, T3. T1, T2, T3. Three transactions are there. Okay. And what are the operations? Firstly, it is read of A. So read 1 A. After that, write to A. So we can say here it is write to A. And then it is read 3A. So here it is read 3A. And after that it is write 1A. Write 1A means this one, write 1A. And after that it is write 3A. Write 3A. Okay, so I have written this one in this manner. Now we'll check for the precedence, conflict serializable schedule or not. So I will make the precedence graph. So T1, T2 and T3, these are the three vertices. Let's see the conflict pairs. First one is read 1A. Read 1A, here it is writing. So read and write, it is conflict pair. And we can say it is T1 to T2. T1 to T2. Next here it is a write of, okay, let me say this one also. Read, it cannot be, but this can be the conflict pair. So T1 to T3. T1 to T3 also a conflict pair. And what about this one? It is a write to A, write 1A. So write and write, this is what a conflict pair. And it is T2 to T1. And T2 to T1 means there is a cycle. If there is a cycle, it is not a conflict serializable schedule, right? So here it is a cycle. If it is a cycle, it is not a conflict serializable schedule. So it is not conflict serializable schedule. Not conflict serializable schedule means I will check for this part. So I will check for blind write or no blind write. Is there any blind write? Yes, here it is a blind write. यहाँ पे रीड करके राइट कर रहा है, नो ब्लाइंड राइट. यहाँ पे रीड करके राइट कर रहा है, नो ब्लाइंड राइट. बट इन दिस ट्रांजेक्शन हियर इट इज ए blind write.
ब्लाइंड राइट अगर है तो क्या करना पड़ेगा, चेक फॉर द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी इट इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट। So for the view serializability I will make the polygraph. So T1, T2 and T3, and I will observe according to that three rules. First one, initial read. I will verify for the initial read, I will check for the final write, and I will check for the write read sequence also. ठीक है, so we'll check for the write read sequence. So first thing, this is what initial read, और यहाँ पे एक ही डेटा आइटम है हर जगह, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल रीड कौन करेगा, T1 ही करेगा। तो इसके इक्विवेलेंट जो व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल आएगा उसमें इनिशियल रीड कौन कर रहा होगा, T1 कर रहा होगा। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, T1। ठीक है, इन दोनों से पहले T1 एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, आई विल वेरीफाई द राइट रीड सीक्वेंस ऑल्सो। अगर राइट रीड सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे ये राइट कर रहा है और यहाँ पे ये रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, राइट रीड। और राइट रीड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, राइट रीड के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि पहले T2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन होगा, T3। ठीक है, तो राइट रीड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पहले T2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T3। तो इसका मतलब पहले T2 और उसके बाद T3 होगा, ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये जो एरो बता रही है ना, इसका मतलब है कि ये बाद में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एरो क्या बता रही है कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, T2 बाद में। ऐसे ये एरो क्या बता रही है कि T1 T3 से पहले एग्जीक्यूट होगा, और ये वाली एरो भी यही बता रही है कि T2 क्या होगा, T3 से पहले एग्जीक्यूट होगा। राइट, और फाइनल राइट के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, फाइनल राइट के अकॉर्डिंग भी ऐसा लग रहा है कि कौन एग्जीक्यूट होगा, T3 एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, है ना। ओके, ठीक है, यहां तक का ये बन चुका है। नेक्स्ट क्या है, हमने टर्म बोला है कि यहाँ पे पॉलीग्राफ बना रहे हैं। पॉलीग्राफ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मोर देन वन एज बनेगी। मोर देन वन एज कैसे बनेगी, लेट अस सी। सो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम हियर, अगर ये राइट कर रहा है और ये रीड कर रहा है, अगर ये राइट और ये रीड कर रहा है ना, तो इनके इन बिटवीन कोई क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई राइट नहीं कर सकता, कोई अदर ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन बिटवीन क्या नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहाँ पे T1 क्या करेगा, किसी टाइम पे जाके राइट करेगा, है ना। T1 यहाँ पे राइट करेगा, अगर ये T1 राइट करेगा तो ये इन बिटवीन भी तो राइट कर सकता है ना यहाँ पे, राइट। सो अगर ये इन बिटवीन राइट करेगा तो क्या हो सकता है, ये सीक्वेंस लॉस्ट हो सकती है, राइट रीड की सीक्वेंस क्या हो सकती है, वी कैन से लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट ऑपरेशन है ये या तो कहाँ पे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये रीड होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये राइट ऑपरेशन है, ये कहाँ पे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट होना का मतलब क्या होगा कि आइदर इट इज एग्जीक्यूटिंग बिफोर T2 से पहले एग्जीक्यूट होगा T1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इससे पहले एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, और इसको कोई नंबर दे सकते हैं, लेट मी से नंबर दे दिया मैंने 1, एक नंबर दे दिया इसको कोई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी स्टोरी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टोरी ये रहेगी कि ये रीड होने के बाद ये राइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि T3 के बाद कौन होगा, T1 एग्जीक्यूट होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है ना कि T3 के बाद T1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब T3 के बाद T1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो इसको भी मैंने नंबर 1 दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास इस पॉलीग्राफ में दो टेम्परेरी एजेस आ चुकी हैं।
ठीक है, एक टेम्परेरी एज ये वाली आ चुकी है, एक टेम्परेरी एज ये वाली आ चुकी है, और इन दोनों में से को क्या करना है, मुझे परमानेंट कर देना है। ठीक है, अब क्या इसको परमानेंट किया जा सकता है? इसको परमानेंट किया जा सकता है क्या? नहीं, इसको परमानेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ रहा है। इस रीड के अकॉर्डिंग तो क्या कह रहा है, रीड के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा देन T3 होगा, और इस वाले राइट की वजह से क्या कह रहा है कि T3 पहले एग्जीक्यूट होगा, T1 बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो ये वाली एज को परमानेंट कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये पॉलीग्राफ की ये वाली एज परमानेंट नहीं करेंगे। फिर कौन से वाली कर सकते हैं, ये वाली एज परमानेंट की जा सकती है। कैसे? क्योंकि T1 के बाद कौन आएगा, T2 आएगा। ऑलरेडी हमने एक एज ले रखी है यहाँ पे कि T1 के बाद T2 आएगा, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, परमानेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसको परमानेंट करने का मतलब क्या हुआ कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर T2 होगा, और फाइनली कौन होगा, T3 होगा। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ जाएगी, यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगी T1